Hello students, I'm Naveela Tariq. In the previous video we had discussed till paragraph 13th of the chapter A Truly Beautiful Mind from your Beehive reader. In this video we'll discuss from the 14th paragraph. Over here we had already learned that Einstein became very successful and especially his theories proved to be a great success all over the world, and he was honored from everywhere in the world. He was called upon, invited and lauded by the press, and we even learned a lot about his personal life, how his marriage failed, then he remarried and all. Now come to paragraph 14th. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build the use of an atomic bomb. Now, Germany में Nazis was a group which came in power, means जर्मन में नाजीज का रूल हो गया था 1933 में. Einstein that time came to United States. उस टाइम तक Einstein United States मीन्स अमेरिका आ चुके थे. उसके 5 साल बाद the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. उसके 5 साल बाद बर्लिन इज़ इन जर्मनी में न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर बॉम्ब जो था उसका जो एक्सप्लोजन था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसकी बनाने की तैयारी होने लगी जर्मनी में. जब अमेरिका ने ये सुना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग हड़बड़ मच गई. अप्रोर मीन्स दे वर अपसेट, मतलब वो लोग परेशान हो गए ये सुन के कि जर्मन वाले न्यूक्लियर फिशन की तैयारी कर रहे हैं. दैट मीन्स एनी टाइम दे कैन come up with a war with them. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाजीज़ का जब वहाँ पे पावर हुआ जर्मनी में तो वहाँ से दूसरी जगहों पे जाके शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऐसा डर था कि वो लोग एटॉमिक फिशन बना रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में वो एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ करें और लड़ाई हो उनकी दूसरे की कंट्री से, जिससे अनसेफ सिचुएशंस क्रिएट हो सकती थी. तो बहुत से लोगों ने जर्मन उस टाइम पे छोड़ दिया था. एंड सेम आइंस्टाइन हैड आल्सो मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय दैट टाइम. कम टू पैराग्राफ 15. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned, "A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory." Now, उसके कुलीग, उसके साथ का जो उनके साथ एक काम करते थे आइंस्टाइन के साथ, उनके फ्रेंड, उन्होंने आइंस्टाइन को फोर्स किया, अर्ज किया, मीन्स रिक्वेस्ट करी कि वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखें और उस लेटर में उनको एक तरह का वार्न करें, उनको एक्सप्लेन करें कि ये जो न्यूक्लियर फिशन है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, अगर वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में जर्मन से उनकी लड़ाई होती है और वो अगर एटॉमिक बॉम्ब हमारे अमेरिका पे फेंकते हैं, तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर जगह भी फेंकेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोर्ट, नाउ पोर्ट इज़ द प्लेस नियर द सी, अगर वो वहाँ पे भी एक्सप्लोड करते हैं वो बॉम्ब, तो वो पूरा पोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एट द सेम टाइम आसपास की जितनी जगहें हैं, जितनी टेरिटरीज़ हैं, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. So imagine how destructive an atom bomb could be. Okay, so his words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Now, the same thing happened, that when Einstein wrote the letter, his words had a great impact on the American president. उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ा, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया एंड इन अ सीक्रेट मैनर में उन्होंने एक एटम बॉम्ब बनाया अमेरिका ने.
और फिर उसी एटम बॉम्ब को उन्होंने कहाँ यूज़ किया? जापानीज सिटीज़, दैट इज़ in Hiroshima and Nagasaki. He used that atom bomb on those cities, and we all know that what were the consequences of that explosion. मतलब जब हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में हमला हुआ एटम बॉम्ब से, उसके इतने सीवियर हालात हो गए कि सालों उसके अफेक्ट्स रहे लोगों के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी पीपल डाइड, बट आफ्टर इफेक्ट्स वो मोर सीवियर. बहुत टाइम तक लोग डिसेबल पैदा हुए. यू में से आज भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो डिसेबिलिटी है, जो बच्चे पैदा होते हैं व्हेन दे आर बॉर्न डिसेबल, दैट इज़ ऑल स्टिल दे आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द एटम बॉम्ब दैट वाज थ्रोन बाय अमेरिका. सो this paragraph 15th is very important, especially the letter which was written by Einstein to Franklin D. Roosevelt, who was the president. Come to paragraph 16. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to United Nations. In it he proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over a decade, Einstein got more and more involved in politics, agitating from an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955, at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. Now, ये जो इंसिडेंट था कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया सीक्रेटली और उसके बाद उसको इस तरीके से यूज़ किया कि हिरोशिमा और नागासाकी की जो सिटीज़ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. सो दिस was greatly means something which was greatly made Einstein greatly shocked. मतलब इस चीज़ से Einstein बहुत ज़्यादा shocked हो गए. This was something that he couldn't come up with. And उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक मिसिव, नॉट मिसिव इज़ अ लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक ऑफिशियल काफ़ी लॉन्ग बड़ा सा लेटर लिखा उन्होंने अगेन यूनाइटेड नेशन की गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने एक अर्ज किया, मतलब एक रिक्वेस्ट करी कि उनको एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए. लाइक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, UNO. This is a kind of a government which controls or which has the power over the nations who are the members of that government. मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नेशंस आते हैं उसको यूएनओ का पावर रहता है उनके ऊपर. ओके, सो अगर कोई कंट्री आपस में अगर वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो होती है वो एटलीस्ट इस चीज़ को देख सकती है कि कोई भी एक कंट्री कुछ ऐसा गलत ना करे दूसरी कंट्री के साथ विच इज़ अगेंस्ट द लॉज. एटलीस्ट हर कंट्री के ऊपर भी एक कोई होना चाहिए जो ये देखे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर वॉर भी है तो उसमें उनके एक्शंस कैसे हैं, कोई भी एक्शंस बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाएं. जैसे अमेरिका ने चुपचाप से सीक्रेटली बॉम्ब बनाया और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अमेरिका जापान पे फेंक दिया. सो जापान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. सो ये इस टाइप के एक्शंस को रोकने के लिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार हो, ये अर्ज उन्होंने उस लेटर में किया और यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट को भेजा. लेकिन पहले वाला लेटर का जितना इम्पैक्ट पड़ा था प्रेसिडेंट पे और उन्होंने बहुत कम टाइम में एक न्यूक्लियर फिजन बना लिया, उसके अनलाइक मीन्स उसके जस्ट ऑपोजिट इस लेटर का कोई ख़ास असर अमेरिका की गवर्नमेंट पे नहीं पड़ा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन आगे के 10 सालों में आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy. वो उन्होंने अपने एंड से, मतलब अपने तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश करी टू ब्रिंग पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करते हुए बहुत सारे कैंपेन्स करे एंड ही ट्राइड टू स्प्रेड पीस एंड डेमोक्रेसी एवरीवेयर.
Now he died in 1955 at the age of 76 and till now he is celebrated as a visionary. लोग उन्हें विजनरी मानते हैं. Now what is visionary? A person who can think about the future in an original and intelligent way. एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर को, आने वाले भविष्य में को एक बहुत ओरिजिनलिटी, एक बहुत ही इंटेलिजेंट वे से देखता हो, प्रैक्टिकल वे से देखता हो, एंड हु हैज़ डन अ लॉट टू टू मेक अ फ्यूचर शाइनी. मतलब अपने फ्यूचर को ब्राइट और शाइनी बनाने के लिए किसी इंसान ने कुछ मेहनत करी हो, एंड सिमिलरली ही लुक्स अपॉन एट द फ्यूचर इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. दैट पर्सन इज कॉल्ड विजनरी. एंड इंडीड Einstein was absolutely fit in that word, and world citizen as much as scientific genius. मतलब लोग उनको world citizen मानते थे, scientific genius से ज़्यादा उनको लोग visionary और world citizen मानते थे. The person who's done a lot for everyone. Okay student, so this was the entire chapter that was about the life of Einstein, his childhood, his youth, his college days, his personal life, married life, family life, at the same time his professional life, his achievements, his contributions, and how he was celebrated as the visionary. So moving forward, we'll do the question answers that you'll have to write in your copies. Okay, thank you.